Good afternoon, everyone. Okay, so when today is a holiday or what? Only 11 children attending the class. Okay, welcome you all to the class. And today we are going to discuss very simple sums, very simple sums related to a previous topic. Okay, so that there would be a connectivity, and then we will be going for the application-based question. Okay, good afternoon to one and all present here. Okay. Um, Connection issues from your side. There are only 6 students right now connected with me. So I'm waiting further and before beginning the session. I think Rishikesh, Janvi, Namini, Aditya. Okay, you are not present here right now. Fine. Are you on connect with your friends? Any idea? Aditya, I think you are in connecting with like all your friends. I've hardly seen them attending. So I call them personally still from their side there is no communication. They don't attend the class. So if you have any reason, discuss with me, please. Good afternoon. Yes, welcome. It's already 2:05. Okay, let's begin with this session. Okay, one change I'm doing it here. We will not discuss the doubt in between. Okay, first let me discuss the topic and then last 5 minutes for your doubt discussion. Okay, so pay attention everyone. Very simple topic I'm discussing. Algorithm using the lemma. Okay, and then we discuss about the exponent form for finding HCF and LCM and the properties. Okay, then we discuss about the co-prime numbers and we used one of the irrational number to prove it that it is irrational with a contradiction method. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फिर से रैशनल नंबर पे जाके विल गो फॉर द बेसिक ऑफ योर क्लास 5 and 6 concept for our prime numbers and composite numbers. Okay, you all are familiar with this concept. What are prime numbers? So the numbers which have only two factors, one and the number itself. Okay, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. प्राइम नंबर मतलब क्या है? जिसके दो ही फैक्टर है, एक फैक्टर जिसमें से वन है और दूसरा वो खुद है, वो प्राइम नंबर होंगे. और कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो नेचुरली जिसके मोर देन टू फैक्टर्स है, यानी कि वन एंड नंबर इटसेल्फ तो होगा ही होगा, प्लस दूसरे और भी होंगे. ठीक है, फैक्टर्स जिसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स. अच्छा, तो इस कंपोजिट नंबर को आप क्या करेंगे? आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. हमने चेन मेथड, जो ट्री मेथड भी पढ़ा था, राइट? जैसे कि आपने सीखा हुआ था, मैंने एक एग्जांपल पहले भी शेयर किया था आप लोगों के साथ. इट इज सपोज say 56. So 56 would be written here as 7. Okay, then what would be here? Okay, and then suppose 7 is okay. So if I write this as say 4, what would be here? And then so on. This 4 would be written as 2. So ultimately I get 56 as, I could write this 7 is the, but when it comes to prime factorization of 56, okay, so when I talk about the prime factorization of 56, I will write this as 2 into 2 into 2 into 7. I could write this as 7 into 2 into 2 into 2. This order is not important, but factors definitely 2 into 2 into 2 into 7. Okay, I'll take one more example, a composite number. Okay, I'll take 64 suppose. Okay, 64. तो 64 के क्या factors हो सकते हैं? तो naturally किस table में आता है? Fine. So there's a 64 आप कहोगे, 16 4s are 64, 2 2s are 64. Okay, 8 8s are 64. So there are so many factors of 64. If I go on discussing the factors of 64, there are many. So 64 के factors देखो तो 1 in the number itself. उसके अलावा तो 2 4 6. Okay, I'm sorry. 2 4 8 16 32. ये सारे उसके फैक्टर्स होंगे. Am I right? बट मुझे जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, तो यहाँ मैं इसको 8 8 लिखूं, या मैं यहाँ पे 32
टूजा लिखो, वो नहीं होगा। अल्टीमेटली प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? So it is 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, मतलब कि 2 का 6 बार लिखोगे. There is no other way to write 64. I hope I'm very clear with it. I'm talking about prime factorization. If I just say factors, write its factorization. Somebody can write 8 eights are, somebody can write 16 fours are, somebody can write 8 eights are, somebody can write 232s are, somebody can even give me 64 ones are. All are correct answer. But once I say prime factorization, that means everybody will have the same answer. This. Okay? Is there any other way other than this? Not possible. Similarly, we did it for 56. आप कैसे भी शुरू करिए. When I say 56 factors, so 1 into 56, yes, both are factors. I can say 2 into 28, yes, they are factors. ओके तो इस तरीके से 14 फोर्स आर, यस इट इज अ फैक्टर. तो कोई भी पेयरिंग को आप फैक्टर्स ले सकते हैं, उसमें से उसको 2 से 3 बना सकते हैं. बट अल्टीमेट the ultimate is the prime function. Then you want to get the same. Let's take one more example. Say 36. Similarly, 36 will be 1 into 36. Somebody could give me the answer as 2 into 18. Somebody could give me the answer as 3 into, say, 12. Somebody can give me the answer as 4 into 9, and so on. Isn't it? But when it comes to prime factorization, then I think everybody will get the same answer, 2 into 2 into 3. Okay, this is called fundamental theorem of arithmetic. थोड़ा सा स्टेटमेंट एम्बिग्यूअस है बट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. सो प्लीज जस्ट ट्राई टू रीड इट आउट. कॉम्पोजिट नंबर, what does it say? Every composite number, मतलब कि जो भी कोई भी composite number आप ले लीजिए. Okay, it can be expressed as a product of primes. उसका मतलब कि कोई भी composite number को आप prime factorization लिख सकते हैं. Yes. This factorization is unique apart from the order of the factorization. I hope I'm clear. Okay. What does it say? कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हो. बट ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा. यूनिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्पेशल होगा. या तो देयर इज ओनली वन वे टू राइट इट. आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं एक नंबर को 10 अलग वे से लिख सकता हूँ. When it comes to prime factorization, अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है. अब आप कहोगे इसका यूज ये कहाँ है? तो फर्स्ट इज जो मैंने कहा था ट्री मेथड, जैसा कभी क्वेश्चन आता है. और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी एप्लीकेशन के लिए. ओके, तो देयर आर टू सम्स वेयर यू विल यूज दिस वर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें? कि जो कंपोजिट नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा. मतलब कि सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, उसके वैरायटी ऑफ वेज नहीं होते हैं. है और शायद आपको एप्लीकेशन थोड़ी सी अलग भी लगे बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने क्लास 6 में किया हुआ. ओके, तो पहले मैं इसके सम्स के ऊपर जा रही हूँ, फिर वो टाइप का क्वेश्चन ले रही हूँ. सो पहला क्वेश्चन आपका आएगा. अगेन बिफोर राइटिंग द क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. प्राइम नंबर क्या होगा? जिसके 2 ही फैक्टर होंगे. तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर. सिंपल, ये याद रखने का तरीका. अब मैं कैसे क्वेश्चन देख रही हूँ, ये शो दैट क्वेश्चन क्या है? शो दैट 17 into 13 into 15 into 16 plus 16 is a composite number. ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है? तो 17 into 13 into 15 into 16 plus 16. ओके, और यहाँ पे जो हम नंबर से डील करेंगे, ये एक आपको हिंट बता दूं कि जो हम नंबर से डील करने वाले उसमें इसी तरीके का नंबर होगा जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. याद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? दो जो टर्म्स होगी उसके पास एक कॉमन फैक्टर होगा तो उसको आप कॉमन निकाल सकते हो. आई होप यू रिमेंबर दैट. सो प्लीज, तो अब आप जनरली आइडियली आप क्या करोगे? पहले नंबर जाओगे ढूंढोगे, फिर ये सारे मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 16 ऐड करोगे, उसके बाद उसका फिर से फैक्टराइजेशन करोगे. ओह माय गॉड, वेरी टीडियस. ओके,
सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसके लिए हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। व्हाट इज दैट? एकदम सिंपल सा है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। व्हाट इज दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? टेकिंग कॉमन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोनों के पास 16 है और हमेशा आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ये एक आपके लिए हिंट है। तो जब मैंने 16 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा? 17 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 1। तो आप कहोगे मैम ये भी कौन सा कम है? 2 है। पर क्या मैं यहाँ पे ठीक है, आपको वो नंबर फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको नंबर नहीं पूछा। ओके, तो एक है कि हम क्यों, मैं डायरेक्ट ये जजमेंट पे क्यों आ रही हूँ? तो मैंने सीखा है कि प्राइम नंबर्स मतलब सिर्फ 2 फैक्टर। इसका मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा है, मतलब डायरेक्टली इट इज अ कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 16 एक आ गया, अदर देन 2 these two factors, मतलब 16, I'm writing it out. So therefore, the given number has 16 as one of the factors. Okay, 16 उनका एक factor है, other than 1 in the number itself, as one of the factor, other than 1 and the number itself. समझ में आया? जो भी नंबर है हमें वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया, और जब 2 से ज्यादा फैक्टर है तो आप क्या कर सकते हो? गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, therefore गिवन नंबर, जो नंबर भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं गिवन नंबर भी लिख सकती हूँ, इज अ कंपोजिट। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? दिस इज अ टिपिकल वे ऑफ क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि यहाँ 16 रिपीट हो रहा है, तो जो भी आप प्लस मल्टीप्लाई होगा मतलब नंबर, हमें ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कॉमन निकालेंगे, और फिर आप स्टेटमेंट में लिख दीजिए कि भैया हमारे पास आ गया है कि 16 एक उसका फैक्टर है, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, इसका मतलब 16 का फैक्टर बनता है। तो इसका मतलब कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा हमारे पास एक और फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर कि ये नंबर कंपोजिट है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद इट। बहुत है, इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, पूरे स्टेटमेंट में आपका सम चलेगा। ओके, what is it given? Show that 4 raised to n cannot end with digit 0. Try to think what is the question with the statement. I hope you got the question. What does it say? Show that 4 raised to n cannot end with digit 0. मतलब कि 4 के पावर में कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जो n होगा वो आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इनका कहना है कि वो जो भी नंबर होगा हम उसको 0 हमेशा पीछे नहीं आएगा। तो एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं, पहले हम सिंपल एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज मैंने n की जगह पे लिया 1, तो लास्ट प्लेस क्या है? 6। इसका मतलब यहाँ पे भी लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। 4 क्यूब 64, नीचे क्या आया? 4। इसका मतलब ये एंड नहीं होगा। चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। 4:4 कितना होगा? एनी आइडिया? यस, 256 एंड 0। यहाँ पे 6 है, पीछे नहीं होगा। ओके, इफ आई कंटिन्यू लाइक दिस, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 4 अगेन, इट इज 1024। ओके, तो आप इस तरीके से दिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करें। थोड़ा सा बच्चों को कभी बोरिंग लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स हार्डली 4 to 5 लाइंस स्टेटमेंट फॉर्म, थियोरेटिकल फॉर्म में। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, इसको आप नहीं इस तरीके से प्रूव करके बताओगे। ठीक है, दिस इज नॉट अ वे टू प्रूव इट। ओके, तो इसका प्रूफ कैसे लिखना है? शो दैट है, इसलिए मैं इसको प्रूफ कह रही हूँ। तो इसको हम कैसे लिखना है? तो पहले तो नंबर क्या है आपका? 4:n। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? यहाँ पे कोई भी नंबर स्क्वायर, 10 क्यूब, 10⁻⁴, तभी आपका 0 आता है, वरना 0 कभी पीछे नहीं आएगा कोई भी नंबर के पास में। आप कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6, 7, 8, 9, कोई भी नंबर ले लीजिए, कभी भी उनके पास में आपको पीछे 0 नहीं मिलेगा, राइट, एक्सेप्ट 10। तो कोई भी नंबर आपको पूछ लिया अदर देन 10, तो आपका आंसर हमेशा नो ही होगा। ठीक है ना?
आपका क्वेश्चन में हमेशा नो ही आएगा, इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। अब वो लिखना कैसे है वो आपको ध्यान रखना है। तो 4 raised to n इज व्हाट, तो 2 into 2 raised to n, यानी कि 2 का स्क्वायर raised to n यानी 2। ओके, क्योंकि 4 raised to n लिखा मतलब 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2 into, बहुत सारी ऐसी पेयरिंग्स होगी, राइट। बट अल्टीमेटली तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, अब आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलिए। आपको 10 कब मिलता है, व्हेन डू यू गेट 10? ओके, तो नेचुरली 10 हमें कब मिलता है, जब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए। ओके, बिफोर गोइंग टू दिस एक और 2-4 और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मैं 10 कह रही हूँ, या तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ 20, तो 20 का क्या हुआ, तो एक 2 और एक 5 तो 100% चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे 30, 300, तो भी यहाँ पे है 3 इंटू जो भी आपके नंबर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 चाहिए। तो यहाँ पे आपके फैक्टर में क्या है, 2 इंटू 5 होना जरूरी है, isn't it? जब 2 and 5 दोनों किसी नंबर के फैक्टर्स हैं, तभी आपका एक उसका फैक्टर 10 होता है। और जब 10 फैक्टर होता है तभी लास्ट प्लेस 0 होती है। ये सारी कॉमन सेंस की बात है, राइट। पर अब लिखें कैसे है, तो 4 is to n is prime factor as 2, and to end with digit 0, क्या चाहिए हमें, we need 2 and 5 as the prime factors. Okay, 2 and 5 as their prime factors, मतलब उसके अलावा कोई भी हो सकते हैं, बट 2 and 5 चाहिए जब हमें पीछे 0 चाहिए। ओके, बट 4 is to n has only 2, not 5 as prime factor, isn't it? कोई और तरीके से 4 is to n आप लिख सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि by fundamental theorem of arithmetic ये क्या कहता है, तो 4 has only 2 as a factor, prime factor। ओके, तो ये बात खत्म हो गई। यहाँ पे सिर्फ 2 ही हो सकता है, तो क्या होगा, अब 2 है तो क्या, तो क्या, फोर is to n can not end with digit 0। समझ में आया? ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, एंड बिफोर दैट लेट्स रिवाइज इट। क्वेश्चन क्या था, 4 is to n के लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने 4 is to n के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स लिखे, तो क्या आ रहा है प्राइम फैक्टर्स 2 is to n। इसका मतलब कि 4 का प्राइम फैक्टर है 2। अच्छा, 10 चाहिए तो मतलब पीछे 0 चाहिए, अल्टीमेटली 0 मतलब फैक्टर शुड बी 10, तो मुझे 0 चाहिए, तो मुझे 2 and 5 चाहिए, पर इसके पास 2 है 5 नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि इसका सिर्फ 2 ही रहेगा, तो 2 ही है, इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0। बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल, सिर्फ नंबर चेंज कर रही हूँ, ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं होगा। सपोज 6 raised to n, तो 6 के पास क्या हो जाएगा, 2 raised to n into 3 raised to n। तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 and 3, और हमें डिजिट 0 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 and 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि बट यहाँ पे 2 and 3 as prime factor but not 5, and therefore by fundamental theorem of arithmetic क्या कहता है, तो भैया 5 नहीं है मतलब हम इसको एंड अप कर पाए, प्लीज पे अटेंशन। ओके, तो एक ये चीज है। अब फिर से मैं चाहती हूँ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ओके, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कोई भी नंबर, ओके, जब मुझे पीछे 0 चाहिए, पीछे 0 चाहिए, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसका एक फैक्टर 10 है, डेफिनेटली पीछे 0 है। आपने इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट किया गया, ठीक है, पे अटेंशन। यू ऑल आर फेमिलियर विद द डेसिमल सिस्टम, ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम, if it is a terminating decimal, please listen to me,
आपने 9th में हमने एक एक्टिविटी भी की थी, अलग अलग नंबर से डिवाइड करके देखा था, तो हमने सबने ऑब्जर्व किया कि हमेशा जब 2 और 5 से, आप ये प्लीज करके भी देखना, इट्स टेक इट एज अ होमवर्क एंड डू इट। आप कोई भी 2 डिजिट नंबर लीजिए, ओके, और उसको सारे नंबर से कैलकुलेटर लेके बैठिए, कोई ऐसा खुद से अभी नहीं, बाद में खुद से ऐसे कुछ डिविजन करने की जरूरत नहीं। आप 2 से लेके 25 तक सारे नंबर से डिवाइड करिए, ठीक है। और उसके बाद आप लीजिए, उसमें से ऑब्जर्व करिए 2, 4, 8, मतलब कि पास हमारा प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी भी है, यू रिमेम्बर दैट इफ पॉसिबल। तो हमने ऑब्जर्व किया था कि जब भी हम कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो हमेशा 1 पे टर्मिनेट हो जाएगा। प्लीज आप ये वीडियो खत्म होने के बाद आप थोड़ा सा 5 मिनट और अपना मोबाइल पास रखना, कैलकुलेटर लेना और ये ट्राई करना। आप 2, 4, 8, 16 जो भी 2 के पास है उसे कोई भी एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे दैट इट वुड बी ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस कैसे, तो 2 का पावर क्या है, तो जब भी आप 2 से डिवाइड करोगे 2 का पावर क्या है, 1, ठीक है। तो आप वो हमेशा देखोगे कि या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है, यदि वो ऑड नंबर है, आपने कोई ऑड नंबर एग्जाम्पल लिया तो वो हमेशा 1 डेसिमल पे एंड करेगा। 2 स्क्वायर तो वो मैक्सिमम 2 डेसिमल पे एंड करेगा। 2 क्यूब मतलब 8 से डिवाइड करे तो मैक्सिमम वो 3 डेसिमल पे एंड करेगा। 2 रेज़ टू 4 तो मैक्सिमम वो 4 प्लेसेस पे एंड करेगा। एंड इसी तरीके से आप 5 का ऑब्जर्व करिए। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस ओरली, बिकॉज मैंने 9th में ऑलरेडी एक्टिविटी परफॉर्म करवाई है, नहीं याद है तो प्लीज अभी आप ये चेक कर लेना। उसी तरीके से जब आप किसी भी नंबर को 5 से लेते हैं, आप अदर देन मल्टीपल ऑफ 5, 5 का जो भी है 5 का टेबल वाला नंबर मत लेना, कोई भी इवन नंबर लीजिए, तो जब आप उससे 5 से डिवाइड करोगे तो हमेशा वो 1 डेसिमल में एंड करेगा, टर्मिनेटिंग भी होगा और 1 डेसिमल में एंड करेगा। उसी तरीके से 25 को डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम 2 डेसिमल में एंड करेगा। 5 क्यूब 125 से डिवाइड करोगे तो हमेशा 3 में एंड करेगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, 2 एंड 5। अच्छा, दूसरी एक चीज हमने बहुत बार ये डिस्कस किया, 2 और 5 एंड 2 एंड 5 डिफरेंस सबको पता है। 2 और 5 मतलब कोई भी एक, बट यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, 2 एंड 5। इसका मतलब 2 एंड 5 दोनों मिल गए तो क्या हो जाएगा, 2 5 10। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 से 1 डेसिमल प्लेस, 5 से 1 डेसिमल प्लेस, तो जब डिनोमिनेटर यानी कि जब आप 10 करते हो तो क्या होता है, ऑब्वियसली इट इज मैक्सिमम 1 डेसिमल प्लेस। 100 तो आप सीधा डेसिमल पॉइंट कहाँ लगा दो, बिफोर 2 डिजिट। 1000 तो बिफोर 3 डिजिट। आई होप यू आर गेटिंग द कनेक्शन विद 2, 5 एंड 10। आपने किया है ना, डिवाइडिंग बाय 10 1 डेसिमल प्लेस, डिवाइडिंग बाय 100 दैट इज 2 zeros, डायरेक्टली आप डेसिमल पॉइंट, तो दैट इज वाई। तो इसका कनेक्शन मिल रहा है 2 एंड 5। 2 डिनोमिनेटर 1 डेसिमल प्लेस, 5 1 डेसिमल प्लेस, 2 5 are 10 also 1 decimal place, 4 2 square, 25 5 का square, 25 4 are 100 2 decimal place everywhere. I hope you get the connection. तो इसको मैं जनरलाइज कैसे कर सकती हूँ कि यदि आपका डिनोमिनेटर 2 raised to m कोई भी पावर और 5 raised to n, it could be same it could be different, ठीक है। और मैं ऐसे कहूंगी कि 2 raised to m into 5 raised to n टाइप, ओके। जब इस टाइप का नंबर होगा 2 raised to m का आपको पता है डिवाइड बाय 2 आप वेरीफाई कर सकते हो, डिवाइड करके 5 वेरीफाई कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं जनरलाइज कर रही हूँ 2 raised to m into 5 raised to n फॉर्म में है। जब भी आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है 2 raised to m into 5 raised to n फॉर्म, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। याद है आपने, ये हमने कब किया था, क्लास 9 के स्टार्टिंग में किया था कि कोई भी नंबर को हम डेसिमल सिस्टम को में बना दे पूरा, ओके। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, वन आर टर्मिनेटिंग एंड द अदर्स आर नॉन टर्मिनेटर है, वो उसका मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तब जैसे 3 आप बाय 3 किया तो डेफिनेटली इट इज, ठीक है, बट वो स्पेसिफिक कंडीशन है कि वो उसका मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है। बट इन जनरल जब 2 raised to m into 5 raised to n है तो वो हमेशा आप बिना डिवाइड करके आप डिसाइड कर सकते हो कि यस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको ये 300 751 डिवाइड बाय 20, will it be terminating decimal without doing division?
ओके, तो आपको क्या देखना है, 20 का फैक्टर्स क्या है। ओके, 20 मैं ये रब नहीं कर रही हूँ कि इनके किसी को डाउट देगा। तो 20 के डिनोमिनेटर्स क्या है, 2 into 2 into 5, यानी कि 2 square into 5। यस, तो इसका मतलब इट इज परफेक्टली डिविजिबल, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सॉरी, परफेक्टली डिविजिबल इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 21/1200, 21/1200 विल इट बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप क्या करोगे, मैंने जैसे बताया वैसे फैक्टराइज करोगे। तो 3 है और यहाँ पे भी है, तो 2⁴ into 5²। अब आप कहोगे मैम यहाँ 3 भी है, बट कैन इट बी कैंसल्ड, सो यू हैव टू चेक फॉर दैट। यस, 7/2⁴ into 5²। So what will you conclude? It is a terminating decimal. अच्छा, अब before ending the session, one thing. Suppose ये terminating decimal है, तो कितने तक चलेगा, कितने terminating decimal होंगे? तो आपको देखना है highest power of 2 and 5. Okay, from 2 and 5 जो highest power होगा उतने decimal places तक ये जाएगा, and then it will end this. Okay, अब कोई doubt है तो please clarify करिए quickly. Yes, children. Any doubt? Aditya, do you have some doubts? Anyone? I think today some issue, network issues are there, because only 10 to 11 are present right now. Anybody, any doubt, children? Okay, yeah, Celine, please continue quickly. Okay, Celine, what's your doubt, child? ज्यादा डिटेल में है तो पर्सनली कॉल करके पूछ लो, या तो अभी quickly. अच्छा, और एक चीज टिल द टाइम शी शेयर्स इट, एक चीज बता रही हूँ मैं, अभी जैसे मैं एंड अप करूंगी सेशन तभी एक लिंक डालूंगी मैं, ठीक है? तो उस लिंक में जाके आपको आपकी अटेंडेंस डालनी है। ओके, उसमें लिंक में जाओगे तो आपको गूगल फॉर्म के साथ वो कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हार्डली देयर आर 12 to 15 चिल्ड्रन वाले, तो आई डोंट वांट टू सी मैक्सिमम, फिर पता चला वहां पे, तो वहां आपका रिपोर्ट आप करोगे, उसको आप फिल करोगे, 2 क्वेश्चन है, उसको आप फिल करोगे तो दैट विल गिव मी द अटेंडेंस फॉर द क्लास। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो अभी नहीं देख पा रहे हैं, तो यदि आप बाद में भी देखते हो तो प्लीज यू राइट योर करेक्ट टाइम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी वक्त अटेंड कर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर नेटवर्क इश्यूज, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप जब भी देखोगे आप वही वाला टाइम करोगे इनके, तो उसको ओपन करना, मैं ग्रुप में भी डालूंगी चाहिए तो, बट 2 बार करने की जरूरत नहीं है। बट यस, इनकेस इफ यू आर रिपीटिंग इट तो प्लीज वहां पे लिख दीजिए रिपीटेशन, जहां टाइम है वहां लिख दीजिए रिपीटेशन एट दिस टाइम। ओके, तो आप 2 बार अटेंडेंस मुझे दे सकते हो, बट वहां प्लीज लिखना कि रिपीटेशन है। या आई थिंक दे हैव सट आउट क्या है, इन केस ऑफ 21/3 into 2, ओके, इट कैन बी डिविजिबल बाय 21, बट अच्छा, हम ये किससे डिविजिबल है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जब, मतलब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जस्ट एंड अदर्स, आपको जनरली ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको नंबर दिया होगा, ओके, और वो आपको पूछेंगे दैट आर दे, इज द गिवन नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट, इफ टर्मिनेटिंग till what places it would be, at what places, or what kind of decimal places will be there, like means it will end after how many decimal places, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। तो आपको वो किससे किससे डिवाइड हो रहा है वो देखने जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 2:2 और 5 आ रहा है डिनोमिनेटर के, नहीं वो देखना है। और जनरली जो आपको क्वेश्चन दिया होगा वो इसी टाइप में होगा, बट या तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, यदि डिनोमिनेटर में यदि 3 रहता, जो आप बोल रहे हैं वो एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया 21/7700, ओके, तो यहाँ मैं कैंसलेशन भी करती हूँ, तो दिस इज 3 into 7 और नीचे है आपका 7 into 11 into 12, सो गिवन rational number is non-terminating decimal. I hope I'm clearing your doubt. Is it clear? तो यहाँ पे आपको देखना है, बट यहाँ ये भी निकल जाता, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन होगा मैंने 231/7700, तो एक्चुअली दिस इज व्हाट 3 into 7 into 11,
Okay, so what is this here? 7 into 11 into 2 square into 5 square. So yes, it gets cancelled and I get 3 upon 2 square into 5 square. So yes, it is a terminating decimal. I hope I'm very clear with this. Okay. सो प्लीज थोड़ा अटेंडेंस का देखना, दोज हु आर नॉट अटेंडिंग, और आप मुझे यदि बाद में भी देख रहे हो तो प्लीज जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हो यू कैन राइट दैट टाइमिंग एंड आई एक्सपेक्ट दैट चिल्ड्रन विल सी इट लेटर. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन. और मैंने, हाँ एक चीज और, मैंने आप सोचोगे कि शायद मैम बहुत टाइम से नोट्स नहीं भेज रहे हैं, तो आज या आज रात तक मैं नोट्स भेज दूंगी, और वो सारी मतलब अभी तक की फाइल की हुई है मैंने, और थोड़ा सा होमवर्क साथ में आ रहा है बिकॉज आई वॉज मेकिंग इट इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, तो थोड़ा सा टाइपिंग में टाइम लग गया. सो आई एम सेंडिंग दैट वर्कशीट्स टू यू, go through it, write it down the notes, and please do the sums. I hope I'm very clear. Coach fit also, so please. So just click on this. Okay, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ एक शीट गूगल फॉर्म आएगा, so you have to fill it up. Okay, bye children. Thank you and write the correct assignments.